ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, YouTube ਚੈਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਕਹਾਣੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1899 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਉਦੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1922 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਲ ਤੇ ਰੋਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਸਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਵੋਟ, ਗੁਟਾਰ ਆਦਿ ਹਨ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਉਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ 1976 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਭਣਵੱਈਆ ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਘਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੀਰਾਂਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਲਾਜ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਾਂਵਾਲੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀਰਾਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲਾਜ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤਪਦੀਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਵੀਰਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਪ ਇੱਕ ਉੱਘਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਗਨ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਗਨ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਝੱਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਘਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਕ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਵੀਰਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ, ਭਰਾ ਜੀ, ਭਰਜਾਈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰਾਂ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਵੀਰਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਰਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਭਰਜਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਖਾਰ 102 ਹੈ।
जे वध जाए तो बर्फ की पट्टी रखनी। किशन सिंह पहली बार जेल नहीं सी जान लगा। इंस्पैक्टर इसकी दृढ़ता तो भी अणजाण नहीं। इंस्पैक्टर नूं किशन सिंह की थोड़ी जी परेशानी के कारण का भी हुण पता लग गया है। मीटिंग का लफ्ज इंस्पैक्टर के कन्नां विच कच के टुकड़े वांग रड़किया। साइकिल ते लत्त धरदिया उसने नाल दे सिपाहियां नूं अख नाल कुछ समझाया ते मूँह नाल कहा, सरदार जी बेशक आराम नाल तैयारी कर लवो, मैं आउंदा हां। इंस्पैक्टर सड़कों पार सामने कारखाने के वड्डे दरवाजों अंदर वड़ गया। बैठे सिपाहियां विचों एक ने कहा, इंस्पैक्टर साहिब शायद किधरे टैलीफोन करन गए हैं। वीरां वाले दियां अखां दे सोमे फुटन ही वाले सन। किशन सिंह की कुछ घूर भरी सैनत नूं पछाण के वो लाश के मंजे के पिछले पासे पई दौड़ी ते बैठ गई। किशन सिंह ने अपनी उंगलां नाल लाश के केसां नूं सुआरदिआं कहा, पुत्तर हुण ते तू ठीक है, अज ते बुखार घट है, कल खबरे टुट ही जावे। जे तैनूं बुखार ना हुंदा तां मैं हुण तक जेल चला जाना सी। साथी ते सारे चले ही गए हैं। लाडली लाज ने मध्यम जी आवाज़ विच कहा, पिता जी मैं ते फिर माड़ी कुड़ी होई जिसने तुहाडे चंगे काम विच रोक पाई है। नहीं मेरी लाज बेटी, तेरा इस विच की कसूर है? बुखार कोई तेरे वस दी गल तां नहीं ना? तैनूं इस तरह छड्ड के जाण दा तां मेरे पहला हੱਠ ही नहीं पिया। जिस दिन मुंबई साडे आगू फड़े गए सन उस दिन मैं उन्हां नूं वधाई देण वाले मते ते 5 मिनट बोलिया सा। फिर मैं तेरी दवाई दारू विच ही लगा रहा, किते बाहर जाण दा समा ही नहीं मिलिया। उंज भी पहलां लीडरां नूं फड़नगे, असां सेवादारां दी वारी पिछों ही आउणी है, पर सानूं उज़र भी की है, भावें हुणे फड़ लैण। किशन सिंह दे मूँहों ये अखीरला फिकरा अजे निकलिया ही सी कि लाज ने नाल ही आख दिता, बेशक फड़ लैण। किशन सिंह अपनी इकलौती लाडली नाल ज्यों-ज्यों गल्लां करदा गया उसका मन हौला हुंदा गया। हुण वो बेसबरी नाल अपनी घरवाली शरण कौर नूं उड़ीक रहा है। बरांडे वाल वेख के वह तसल्ली कर लैंदा है कि इंस्पैक्टर भी अजे नहीं परतिया। पास बैठी वीरां वाली पहलां तां गलेडू भर आउण दे डर तो नहीं सी बोलदी, पर हुण उसनूं भी कुछ हौसला जिहा हो गया। उसने कहा, लाज तेरे पिता जी फड़े गए तां तेरी दवाई कौन करेगा? तू उदास ना हो जावेगी। भूआ जी दवाई दारू लई तुसी जो मेरे पास हो, माता जी जो हन। बाकी रही उदासी की गल, मैं तो राजी हो के आप इस वीरां पिता जी पास जेल विच चली जावांगी। लाज की गल सुन के वीरां वाली का बेइख्तियार हासा निकल गया। लाज ने कहा, नहीं भूआ जी हासे की गल नहीं, अपने मुल्क वास्ते जेल विच जाना कोई माड़ी गल तो नहीं, मैं इस वेरा जरूर जाना है। लाज तू तो अजे 12 सालां दी भी नहीं हुई। भूआ की गल सुन के लाज ने कहा, पिता जी सुनो भूआ जी की गल। मालूम हुंदा कि भूआ जी कदे गुरुद्वारे नहीं गए, इन्हां कदे कथा नहीं सुनी। पिता जी भूआ जी नूं दसना साहिबजादियां दी उम्र कितनी सी? वो तो इस उम्र विच शहीद भी हो गए सन। मैं जेल नहीं जा सकदी। वीरां वाली दी तां गल ही की, हुण ते किशन सिंह दीयां अखां भी बेकाबू हो गईयां। ये तसल्ली भरी खुशी दे अथरू सन। किशन सिंह ने लाज दे सराहणेों चाबियां चुकियां। समान वाले कमरे विच ही उसने कपड़े बदले ते मुड़ लाज पास आ गया। लाज दे इस सवाल ने कि पिता जी इस वेले कपड़े क्यों बदले ने, किधर चले हो, किशन सिंह नूं बहुत सारा सौखा कर दिता। किशन सिंह नूं हुण इहो सोच सी कि अपने हुणे गिरफ्तार हो जाण दी खबर बीमार लाज नूं किहड़े लफ्जां विच दसे। वीरां वाली दी उचेची बेचैनी ने भी बहुत कुछ प्रगट कर दिता। किशन सिंह ने शब्दार्थ दीआं पोथियां ते नितनेम दा गुटका लाज दे कमरे विच ही अलमारी चों कढ के अपने निक्के ਜਿਹੇ बक्से विच पाया। बरांडे विच बूटां दा खड़कार होया। किशन सिंह ने ताप नाल पख रही लाज दे मत्थे नूं चुम्मिया। मेरी लाज दा भावपूर्त शब्द उसके मूँह चों निकलिया। उसदियां अखां विच जम्मे हुए मोती एक बार फिर पिघल पई। अयाणी लाज ने बड़ी सियाणप भरी आवाज़ विच कहा, पिता जी मेरा फिक्र ना करो। घर दे गली वाले दरवाजों एक नौजवान अंदर वड़िया। पुलिस की अख बचा के उसने किशन सिंह के कन्न विच कोई गल की। नौजवान वापस चला गया। किशन सिंह के चेहरे ते फिर डूंगी गंभीरता आ गई। इस हालत विच लाज संबंधी वीरां वाली नूं कुछ गल्लां समझा के वह पुलिस नाल टांगे विच बैठ गया। शहर की कोतवाली विच टैलीफोन की घंटी खड़कन के नाल ही गारद नूं तैयार होने का हुक्म तो हो गया, पर तुरंत का ऑर्डर 1 घंटे की उड़ीक पिछों मिलिया। छोटे बाजार के नाल लगदी पुरानी हवेली नूं पुलिस दे घेरा पाउण दी ढिल सी कि हवेली की खब्बी नुक्कर वाले कमरे की गली वल खुलण वाले दरवाजे विचों एक खद्दरपोश बीबी दौड़ के बाहर निकली। इसके हत्थ विच एक कौमी झंडा ते गात्रे किरपान सी। तुरंत ही इस दे पिछे पिछे कौमी नारे लाउंदियां खद्दर दीआं साड़ियां वालियां होर भी बहुत सारियां बीबियां निकल आईयां। गली वाले दरवाजे अगे खड़ा सिपाही वेखदा ही रह गया ते यह बीबियां बाजार विच पुज गईयां। भारत माता दी जय दे नारिਆਂ नाल आसमान गूंजण लगा। थोड़े चिर विच ही ये इतनी भीड़ हो गई
कि छोटे बाजार का रस्ता बंद हो गया। कौमी झंडा जवाब विच लोगों ने कहा सदा उच्चा रहे। एक पुलिसिए ने अगे वध के झंडा खोण की कोशिश की। झंडे वाली बीबी अगे वधदी जा रही सी। पुलिस वाले दा हथ गातरे की किरपान ते जा पिया। खिच्चा खिच्ची विच म्यान उतर गई ते पुलिसिए दे हथ नूं झरीट आ गई। थोड़ा जिहा खून भी निकल आया। पुलिस ने घबरा के लाठीचार्ज शुरू कर दिता। बहुत सारी भीड़ खिंड पुंड गई। झंडे वाली बीबी ने कौमी झंडे नूं दोहां हत्थां विच घुट के फड़ लिया ते एक दुकान के सामने फट्टे ते धरना मार के बह गई। बाकी दियां बीबियां भी जमीन ते बह गईयां। बहुत सारी भीड़ दी खिंड पुंड जाण पर पुलिस गारद दे इंचार्ज नूं पहलां बड़े रोब नाल फिर नरमी नाल झंडे वाली बीबी तो झंडा लैण दी कोशिश की, पर बीबी दे डूंघे विश्वास सामने कोई पेश ना गई। बीबी ने कहा यह झंडा साडी जान दे नाल ही जावेगा। अखीर ते बीबियां दे सारे जत्थे नूं गिरफ्तार करके टांगियां विच बिठा लिया गया। जेल दे दरवाजे अगे जाके फिर झंडे दा झगड़ा छिड़ गया। बीबियां कहंदियां सन कि असीं जेल दी बैरक ते कौमी झंडा लाउण लई अंदर नाल लै जावांगियां। यह झगड़ा हो ही रहा सी कि किशन सिंह नूं भी पुलिस लैके जेल के दरवाजे अगे पुज गई। बीबियां दे जत्थे अंदर झंडा हथ विच फड़ी बैठी अपनी सुपत्नी शरण कौर नूं वेख के किशन सिंह नूं कोई हैरानी ना हुई। इउं जापदा है कि किशन सिंह नूं इस घटना का पहला ही पता लग चुका है। किशन सिंह ने बीबियां नूं समझाया, तुसीं झंडे संबंधी अपना काफ़ी विश्वास प्रगट कर दिता है। खुल दी हालत विच तुसीं इसकी बेअदबी नहीं होण दित्ती। हुण तुसीं कैद हो जे एक वेर तुसीं बैरक ते झंडा ला भी लिया तो जेल कर्मचारी तुहानूं बैरक के अंदर बंद करके झंडा पाड़ देणगे, इसलिए इसका लाभ नहीं। अखीर फैसला होया कि झंडा अदब नाल कांग्रेस के दफ्तर विच पहुंचा दिता जावे। जेल के अंदर दाखिल होकर शरण कौर ने अपने पति तो लाज बाबत पूछा, पर कोई जवाब सुनने तो पहला ही जनाना वार्ड का बूहा खुल के बंद हो गया। वड्डा ताप ते माता पिता का फड़िया जाना सारे दुखों ते देश सेवा लई जेल जाण दी जबरदस्त इच्छा प्रबल हो आई। लाज दिनां विच ही तुरन फिरन लग पई। भूआ ने लाज की सेवा विच कसर ना रखी। लाज नूं चुकवा के ओह घर ही लै गई सी। वीरांवाली दे घर वाले जमादार हुशनाक सिंह नूं अपने साले दे सालेहार दे फड़े जाण दी खबर गड्डी विच ही किसी वाकफ तो मिली, जद कि ओह घर छुट्टी आ रहा सी। छाउणी विच कोई अखबार नहीं सी जांदा। हुशनाक सिंह दा टांगा जद बूहे अगे पुज्जा तां लाज दरवाजे विच खड़ी सी। उसने पहलां फुੱफड़ दे आउण दी खबर दौड़ के भूआ नूं दसी, फिर परत के टांगे विचों उतर रहे फुੱफड़ दे गल आण लगी। वीरांवाली ने पहलां दरवाजे अगे आण के अपने पति नूं सत श्री अकाल आखी, फिर झट अंदर वड़ के शीशे अगे अपने वाल सवारे दुपट्टा बदलिया ते चाई चाई मुड़ बाहर आके समान संभालण दे आहर विच लग गई। लाज भी निक्कियां निक्कियां चीज़ां संभालण विच अपनी भूआ नूं मदद देण लग पई। गुआढ़ तो सज्जन मित्र हुशनाक सिंह नूं पुछण भालण आ गए। वीरांवाली ने चुल्हे ते चाह रख दित्ती। गुआढ़ियां दे चले जाण पुर चाह पियाउण लग्गियां ही वीरांवाली नूं भी अपने पति पासों सुख सांद पुछण दा मौका मिलिया। उसने चाह विच मिठा हिलाउंदियां पुछया, जी वल राजी बाजी रहे हो? अगे तां वल ही रहे हाँ, पर मालूम हुंदा है तूं वल रहण नहीं देना। वीरांवाली दे कन्नां नूं ऐसे ही उत्तर दी आस सी। वह अपने पति के चेहरे तो उसके मन की अवस्था नूं तां पढ़ चुकी सी, पर नाराज़गी के कारण दी पूरी समझ उसनूं अजे नहीं सी आई। वीरांवाली ने गल नूं इत्थे ही ठप दिता। हुशनाक सिंह ने नाह नुक्कर करदियां चाह की प्याली पी ही लई। रात की रोटी तक वीरांवाली ने कोई गल छेड़न का मौका ना दिता। हुशनाक सिंह ने भरियां पीतियां ही 2 रोटियां संघों हेठां उतारियां। वीरांवाली ने तां खाना ही की सी। सौण के कपड़े बदल के हुशनाक सिंह लम्मा पै गया। वीरांवाली लाज नूं रोटी खवा के भांडा टिंडा सामण पिछों लत्तां दबाउण दे बहाने अपने पति पास मंजे ते आण बैठी। 10-15 मिनट दोहां पासियां तो चुप रही। हुशनाक सिंह ने पासा परतदियां इउं उबासी लई जिवें वो पहलां सौ गया सी ते हुण ही उसनूं वीरां दे पास बैठे होण दा पता लगा है। वीरांवाली ने कहा, जी इधर मूँह ते करो, तुहानूं ते जग रखना भी नहीं आउंदा। उड़ीक उड़ीक के साडियां अखां भी पक गईयां हन ते इह सिद्धे मूँह गल भी नहीं करदे। छुट्टी कितनी मिली जे? हुशनाक सिंह ने फिर पासा परतिया ते अखां पुर हथ रख के आखण लगा, तू हुण लम्मी छुट्टी ही समझ, सुख तैनूं पचदा नहीं। हुण ही तरक्की दे दिन सन, पर तू मैनूं कुछ बनन नहीं देना। जी गल ते दसो। गल की दसां? तैनूं पता नहीं अजकल लड़ाई दे दिन हन। किसी फौजी दे बागिया नाल मेल जोल नूं सरकार पसंद नहीं करती। अवल तां सरकार नूं पता ही नहीं लगन देना चाहिदा कि कोई बागी साडे संबंधी हन। जे पता लग भी जाए तां असीं आख सकदे हां कि वो साडे आखे तो बाहर हन। पर तूं ये भला क्यों जान बुझ के अपने गल पा लई? बागी दी धी नूं पास रखना तू नहीं जाणदी कितना जुर्म है। अपने पति की गल सुन के वीरांवाली नूं कंबणी जिही आ गई।
उसनूं ये ख्याल नहीं सी कि लाज नूं ऐसी हालत विच इत्थे लियाउणा पति लई इतना ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। उसकी जान पसीना पसीना हो गई। होशनाग सिंह ने फिर दंद करीच के कहा, तू इस कुड़ी नूं क्यों मेरे घर लिआंदा? वीरा वाली ने भरे गले नाल सारी विथ्या इस तरह सुनाई जिवें कोई पुजारन देवी पासों किसी मन भाउंदे वर दा तरला लै रही होवे। पर तुरंत ही उसनूं अनुभव होया कि पति देवता पत्थर की मूरत सन। उसके मन विच पति की छुट्टी आउण दीआं किन्नियां उमंगां सन। उसदे सारे वलवले ते चाह खिंड पुंड के उसदियां अखां सामने परछावें जिहे बन के खिलर गए। पुआंदी पिया ही उसने रात कट लई। हंझुआं दे कीमती मोतियां दी भेटा पर पत्थर की मूर्ति विच कोई अनुभवता ही नहीं सी। पति दे हठ ने वीरा वाली नूं भी अपने अपराधी होण दा शक जिहा पा दिता। घबराया होया आदमी अपनी घबराहट के कारण नूं लुकाउण दा जो साधन वरतदा है वो उसकी घबराहट नूं वधीक प्रगटाउंदे हन। सज्जणा मित्रां तक गल पुज गई। सियाणियां दीआं दलीलां ते मिसालां होशनाग सिंह नूं कायल ना करवा सकियां कि तेरे साले ते साले हार दी जिम्मेवार किसी तरह भी तेरे ते नहीं आउंदी। जिम्मेवारी किसी तरह भी तेरे ते नहीं आउंदी। लाज नूं अपने पास रखना वो अपनियां सब आसां दे खात्मे दा परवाना समझदा सी। वधीक नहीं तां सूबेदार, मेजर तां उसने इस जंग विच ही बनना है। लाज दे कन्नां विच भी कोई ना कोई गल पै जांदी रही। छुट्टी पूरी हो गई। होशनाग सिंह ने टांगा बूहे अगे खड़ा किया, वीरा नूं बाहों फड़ के उस दे विच बिठाया ते मकान दीआं चाबियां जेब विच पा लईआं। बूहे अगे कुड़ियां नाल खेडदी लाज टांगे विच बैठी बेवस भूआ वल ते भूआ हंझुआं भरियां अखां नाल लाज वल वेखदी रही। टांगा ओले हो गया। भरा जी लाज दा की बनिया? वीरा असीं तां तेरे पास अमानत छड्ड आए सां। 1 साल ते 2 महीने गुजर जाण पिछों सेंट्रल जेल मुल्तान दे मुलाकात वाले कमरे विच भैण वीरा वाली दा यह एक सवाल ते भरा किशन सिंह दा यह एक जवाब, बस कुल 2 ही गल्लां सन जो उन्हां 1 घंटे की मुलाकात विच जबान नाल कीतियां। इन्हां दोहां गल्लां पिछों तवल्ली चुप ते किसे वेले तर अखां नाल एक दूजे वल तकना दिल दीआं गल्लां सन जिन्हां नूं बेज़बानी दी जबान दा कोई पंडित ही दस सकदा है। मुलाकात करवाउण वाले अफसर ने वक्त खत्म हो जांदी घंटी वजाई। दोवें भैण भरा चुप चपीते एक दूजे नूं वेखदे अड्ड हो गए। माँ प्यो जाई नाल ये आखिरी मिलनी है। किशन सिंह नूं इस गल दा की पता सी। जेलां विच कैदियां दी आवाजाई लगी रहिंदी है। किशन सिंह नूं ये तां पता लग चुका है कि लाज हुण लाहौर हस्पताल विच है, पर वीरा वाली उस नालों भी सख्त कैद विच है। किशन सिंह नूं ये गल किसी ने ही दसी। छाउणी विच तां कोई पंखेरू पर भी नहीं सी मार सकदा। बागी भरा भरजाई ते बागीआं दी धी बाबत वीरा वाली नूं कौन खबर दसदा? वीरा वाली मुलाकात लई जेल तक किवें पुज गई? इस भेद दा अज तक किसी नूं नहीं पता लग सकिया। उसने अपनी जान खतरे विच पाई। अपने पति होशनाग सिंह तो यह भेद लुकाउण विच उसनूं सफलता मिली, पर भरा दी अमानत विच मजबूरी खियानत हो जाण दा सदमा ओह ना सहार सकी। होशनाग सिंह ने असल मर्ज वल तां ध्यान ना कीता, होर दवाइयां ने की सवारना सी। शरण कौर दी कैद पूरी हो गई। वीरा वाली ने अमानत विच खियानत दी दोषण होकर भरजाई सामने पेश होने तो पहला ही सदीवी रिहाई पा लई। शरण कौर सीधी लाहौर हस्पताल विच पुजी। वड्डा दरवाजा बंद सी। दरबार ने कहा, मरीजां दे आराम दा वक्त है। दरवाजे की खब्बी नुक्कर विच भंगियां दा घर सी। ओपरी खद्दरपोश जनानी नूं वेख के जमादारनी नेड़े आ गई। उसने पूछा, तुसी किस नूं मिलना है? शरण कौर चाहती भी सी कि उस ते कोई सवाल करे। शरण कौर ने कहा, मेरी लड़की इत्थे बीमार है, लाज। जमादारनी ने वार्ड के कमरे का नंबर पूछया ते नाल ही कहा, असां ते इस नां की कोई बीमार लड़की नहीं सुनी। मैं रोज़ हर एक वार्ड विच सफाई लई जांदी हाँ। शरण ने कहा, मैनू ते वार्ड का पता नहीं, ना ही कमरे के नंबर का पता है। सुनिया है कि मेरी इलाज इस हस्पताल विच है। सुनिया है? जमादारनी ने हैरान होकर पूछया, तुसां आप उसनूं इत्थे दाखिल नहीं करवाया? नहीं, असी जेल विच सां, पिछों वो बीमार हो गई। ओहो, बाकी दी धी होवेगी। जेल का नां सुन के जमादारनी ने कहा, इत्थे उसदे इलाज नां दा किसी नूं भी पता नहीं। पतली गोरी जेही 12-13 सालां दी कुड़ी है, बड़ियां मिठियां गल्लां करदी है। उसदियां गल्लां सुन के कदे हासा आ जांदा है, कदे रोना। वो अपनी भूआ पास सी। शरण कौर ने हाँ विच सिर हिलाया। बस ओहो है। जदों ओह पहलां इत्थे आई तां उसने किसी कुड़ी तो पुछया, बागी किस नूं आखदे हन?
ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਹੱਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਬੁੱਤ ਬਣੀ ਖੜੋਤੀ ਸੁਣਦੀ ਗਈ। ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਨੇ ਠੰਡਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਭੂਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅਥਰੂ ਵਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਝਲਕ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।